ٹنڈوالا یار میں پولیس نے چند روز کی تفتیش کے بعد اندھے قتل کیس کے 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ تفتیشی ٹیم اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل نے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی مدد سے سدھیر، عمران اور غلام مصطفیٰ کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ لیاقت آباد میں گھر میں واردات کرنے والا ملزم پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گھر کے تالے توڑ کر سونے کی بالیاں، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کیا۔ گرفتاری کے بعد چوری شدہ سامان برآمد کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کیا گیا۔ ڈی پی او گجرات کی ہدایت پر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن نے کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں نے براہ راست شکایات پیش کی جنہیں ڈی ایس پی نے سنجیدگی سے سنا ہے۔ موقع پر ہی متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ تھر پارکر میں نجی ویلفیئر ٹرسٹ نے رمضان المبارک میں غریب خاندانوں اور بچوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری کر دیں۔ ٹرسٹ نے 100 سے زائد پانی کی بورڈ کاپیاں، کتابیں اور اسکول بیگ تقسیم کیے۔ ساتھ ہی غریب خاندانوں میں راشن اور روزہ افطاری بھی فراہم کی گئی۔ میرپور ساکرو کے ساحلی علاقے میں پل گرنے کے باعث سینکڑوں دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پل کے گرنے سے آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے۔ طلباء، مریض اور تاجروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور پل کی ہنگامی تعمیر کی اپیل کی ہے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سادیہ اور میں ہوں نصرت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے جڑاوالا میں جسوانہ بنگلہ سٹاپ کے قریب ایک خوفناک روڈ ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں 3 طالب علم موٹر سائیکل پر سوار سامنے سے آنے والی ہائی ایس وین سے ٹکرا گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری طور پر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ کاندلیا والا میں فیصل آباد سے ساہیوال روڈ پر شیرازی چوک کے قریب خوفناک ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ جاں بحق شخص کی شناخت کے لیے کارروائی جاری ہے۔ ڈسکا میں تیز رفتاری ایک اور قیمتی جان لے گئی۔ افسوسناک ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور گاڑی کو کاٹ کر نوجوان کی لاش باہر نکالی جسے ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر گلیات میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کے ورثاء نے تھانہ میں درخواست جمع کروا دی۔ بعد ازاں پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی اور فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ نوشہر و فیروز کے گاؤں میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گھریلو تنازع پر اپنی اہلیہ پر گولی چلا دی جس کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی اور زخمی خاتون کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹنڈوالا یار میں پولیس نے اندھے قتل کیس کو چند روز میں ٹریس کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیشی ٹیم اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل نے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی مدد سے کیس ٹریس کرتے ہوئے سدھیر، عمران اور غلام مصطفیٰ نامی 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ کشمور اور گھوٹکی کے سرحدی کچے میں پولیس کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 2 خطرناک ڈاکو ہلاک اور ایک بدنام زمانہ ڈاکو زخمی ہوا۔ گرفتار اور زخمی ملزمان اغوا، برائے تاوان، بھتہ خوری، پولیس مقابلے، اقدام قتل اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ ایس ایس پی کشمور محمد مراد گھانگرو نے کہا ہے کہ کچے میں ڈاکوؤں کے خاتمے اور جرائم پر مکمل کنٹرول تک آپریشن جاری رہے گا۔
गुजरात थाना सिविल लाइन की चौकी में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग और 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक की हिदायत पर डीएसपी सिटी सर्कल की निगरानी में एसएचओ थाना सिविल लाइन और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। मोटरसाइकिल चोरों से 4 मोटरसाइकिल और पार्ट्स बरामद किए। लियाकताबाद के इलाका में घर में वारदात करने वाले मुलजिम इकराम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने घर के ताले तोड़कर दाखिल होकर सोने की बालियां, नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद सोने की बालियां, नकदी और दीगर सामान बरामद करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। दूसरी जानिब रेनाला खुर्द में रेलवे सिग्नल आलात चोरी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। रेनाला खुर्द पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त तारिक और मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक रेनाला खुर्द से बताया जाता है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ थाना रेलवेज पुलिस रायवंड में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। लियाकतपुर में महकमा जंगलात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा जंगलात की इत्तला पर मुकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा लकड़ी थाने मुंतकिल की। मुलजिमान से असलहा भी बरामद हुआ और तफ्तीश जारी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बताया है कि ये इकदाम जंगलात की हिफाजत और सरकारी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम है। शोरकोट में शहरी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में हंगामा राई के मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया। समाअत के दौरान पुलिस ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने सबूत नाकाफी होने के सबब मुकदमा खारिज कर दिया। और दूसरी जानिब सदर डिवीजन पुलिस की निगरानी में जाती उमरा गेट पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मश्क में एलीट फोर्स, एसपीयू, रेस्क्यू 1112 बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉल्फिन स्क्वाड, पीआरयू समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे शरीक थे। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया और कहा है कि अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने की खातिर हंगामी मशकों का इनेकाद जारी रहेगा। पाकपतन में फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी यूनिट से मुर्दा चिकन और जानवरों की ममनुआ चर्बी बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान 320 किलो मुर्दा चिकन, 240 किलो जानवरों की अलाइशें और 100 किलो ममनुआ जानवरों की चर्बी बरामद करके मौका पर तलब कर दी गई। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरे 2 लोडर रिक्शे पकड़ लिए और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुर्दा गोश्त, फार्मा और दीगर फास्ट फूड आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल होना था। पुलिस ने दोनों रिक्शा ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके थाना तैयब सईद शहीद में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। फैसलाबाद में पीएफए की फूड सेफ्टी टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान मिलावटी बेसन और मकई आटा जब्त करके यूनिट को बंद कर दिया। छापे के दौरान बेसन में मकई की मिलावट साबित हुई है। फूड अथॉरिटी ने यूनिट की नाकिस सफाई के इंतजामात, हशरात की भरमार, मुलाजमीन के मेडिकल न होने, बगैर लाइसेंस कारोबार और खुराक की जालसाजी पर सख्त कार्रवाई की। मिलावटी बेसन को दिलकश पैकिंग लगाकर शहर में सप्लाई किया जाना था। साहुका के नवाही कस्बा हाजी शेर दीवान साहब में महकमा औकाफ और तहसील इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी कमर्शियल अराजी नाजायज काबिजीन से वागुजार करवाई। महकमा औकाफ की सरकारी कमर्शियल मार्केट पर मकामी अफराद कई सालों से नाजायज कब्जा जमाए हुए थे और माजी में मज़ाहमत के बायस मुतादिद ऑपरेशन नाकाम हो चुके थे। ताहम पुलिस की मौसर हिकमत अमली के बायस इस मरतबा ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम सरकारी अराजी खाली करा के महकमा औकाफ के हवाले कर दी गई। कामयाब कार्रवाई पर महकमा औकाफ के अफसरान ने सर्कल बुरेवाला पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, डीपीओ गुजरात की हिदायत पर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन ने डीपीओ कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने बराह रास्त अपनी शिकायत पेश की हैं, जिन्हें डीएसपी ने तवज्जो और संजीदगी से सुना है। मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए।
बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पुलिस लाइन्स हॉल में दरबार का इनेकाद करके अफसरान और जवानों के मसाइल सुने हैं। डीपीओ राना अब्दुल वहाब ने पुलिस एहलकारों से बराह रास्त मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और तरजीही बुनियादों पर हल करने के अज़्म का भी इजहार किया। दरबार में जिला भर के अफसरान एहलकार वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। डीपीओ ने महकमाना नज़्म ज़ब्त पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने और बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वेलफेयर अवलीन तरजीह है और जवान महकमा पुलिस का फख्र हैं। दूसरी जानिब बोकाड़ा के नए डीपीओ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, जहां जिले पुलिस ने चाको चौबंद दस्ते के साथ इस्तकबाल किया। डीपीओ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने शहरियों की जान माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़, सहूलियात की फराहमी और जराइम के खात्मे के लिए तमाम इक़दामात बरोएकार लाने का अज़्म ज़ाहिर किया। IG पंजाब के विजन के तहत तफ्तीशी अमूर को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाएगा और शोहदा फैमिलीज और गाजी पुलिस अफसरान के मसाइल के हल और वेलफेयर को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। MLC के बस अड्डा कॉलोनी चौक पर मुसाफिरों के क्वाइफ की कंप्यूटराइज्ड जांच का अमल शुरू कर दिया गया। चौधरी सईद अहमद सयाल ने अचानक दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया और ट्रांसपोर्ट इंतजामिया को हिदायत जारी की। मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर मालूमात टिकट के इजरा के वक्त कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज की जा रही हैं और पुलिस डेटाबेस से मुंसलिक की गई हैं। DSP ने हिदायत दी कि चेकिंग के दौरान मुसाफिरों के साथ खुश अखलाकी बरती जाए और डेटा के इस्तेमाल को कानूनी दायरा कार तक महदूद रखा जाए। वहां डीपीओ हरिपुर ने तहसील गाजी का तफसीली दौरा करते हुए पुलिस सहूलत मरकज DRC और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी का जायजा लिया। डीपीओ हरिपुर ने सहूलत मरकज गाजी का दौरा किया है, जहां इंचार्ज पुलिस सहूलत मरकज कायनात सैयद ने शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। DSP ऑफिस गाजी में DRC मेम्बरान से मुलाकात की गई, जहां चेयरमैन DRC शाकिर कुरैशी ने कारकर्दगी और मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर फैसलाबाद ने अहमदपुर सियाल में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक गढ़ महाराजा का दौरा किया है। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने दौरे के दौरान हेल्थ क्लिनिक में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और फौरी जाम में सफाई करा के तस्वीरी सबूत फराहम करने की हिदायत भी जारी की। नासरीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने थाना सिटी कबीरवाला का अचानक दौरा करके सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। दौरे के दौरान फ्रंट डेस्क का भी जायजा लिया गया है और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। डीपीओ ने ऑनलाइन और रजिस्टर्ड रिकॉर्ड की चेकिंग करते हुए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी पर जोर दिया है। उन्होंने अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहते हुए पेशावराना जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में अंजाम देने की ताकीद भी की है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिस की जानिब से माजूर अफराद के सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत MS डॉक्टर मियां आदिल आरिफ ने की। इजलास में 80 माजूर अफराद का मुआयना किया गया और उनके सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए कार्रवाई मुकम्मल की गई। डॉक्टर मियां आदिल आरिफ ने कहा कि माजूर अफराद को जल्द ही सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे ताकि वो पंजाब हुकूमत की इमदादी स्कीम से फायदा उठा सकें। वहां पाकपतन में माह रमजान के दौरान सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहरी और देही इलाकों, मरकजी बाजारों और मार्केट्स में मुसलसल मुआयना कर रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, निरखनामों की नुमाया आवेजा होने और मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त की सख्त निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों में अचानक चेकिंग की। अफसरान ने फल, सब्जी, गोश्त, दूध, दही और दीगर अशिया खुरोनोश के निर्खनामों का जायजा लिया और दुकानदारों को सरकारी कीमतों की पाबंदी की हिदायत की। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
मुरीद के में रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही महंगाई में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। तहसील मुरीद के की सब्जी और फ्रूट मंडियों में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी, आटा, घी, दालों और दीगर रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे गरीब और मतवस्त तबका शदीद मुतासिर है। पत्तोकी में चेयरपर्सन मॉडल बाजार ने निगहबान रमजान बाजार का दौरा किया है और अशिया की दस्तयाबी और निर्खों का जायजा लिया। चेयरपर्सन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना करते हुए सब्जी, फ्रूट, आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें और मयार चेक किए। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि मुकर्रर निर्खों से जायद वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब का मौसर किरदार जारी रहेगा। नाज़रीन, करमपुर में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में होटल और स्टॉल्स दिन दहाड़े खुले रखे गए। शहरियों के मुताबिक खाने पीने की अशिया के दिन के औकात में खुली फरोख्त न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी इक़्तिदार की भी तौहीन है। इंतजामिया के इस मामले में खामोशी सवालिया निशान बन गई है। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और दिन के औकात में खाने पीने की अशिया की खुली फरोख्त बंद की जाए ताकि रोजादारों के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। अख्तराबाद में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आरिफवाला के कबूला शरीफ शेखपुरा रोड की आबादी में 11,000 वोल्ट की मेन लाइन घरों और छतों के ऊपर से गुजरने लगी। कम बुलंदी पर लटकती हाई वोल्टेज तारों की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा होने का खतरा है। मुताद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की खामोशी बरकरार है। शहरियों ने अपनी मदद के तहत घरों के अंदर और दीवारों के साथ बिजली के पोल नस्ब किए हैं, मगर अहले इलाका वापदा और आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा कर रहे हैं ताकि लाइन फौरी मुंतकिल की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन के सिकंदर चौक में वाटर सप्लाई का मेन पाइप गुज़श्ता 4 रोज से लीक है, जिससे इलाका मकीनों, ताजरों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी। मकामी ताजरों ने कई बार इंतजामिया को इत्तला दी, मगर 4 दिन गुजरने के बावजूद कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। शहरियों ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर मेन पाइप की मरम्मत की जाए ताकि मजीद नुकसान और परेशानी से बचा जा सके। मीरपुर साकरों के साहिली इलाके में मौजूद पुल अचानक गिर गया, जिसके बायस सैकड़ों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पुल के गिरने के बाद आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे तुलबा, मरीजों और ताजरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और पुल की हंगामी बुनियादों पर तामीर का मुतालबा किया है ताकि शहरियों का शहर से राब्ता बहाल हो सके। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही हरूनाबाद की मार्केट्स में खजूरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई है। शहरी अफ्तार दस्तरख्वां की जीनत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। तफसीलात जानते हैं अरशद अली की इस रिपोर्ट में। माह सियाम शुरू होते ही शहर की बड़ी और छोटी मार्केटों में खजूर के स्टॉल सज गए हैं। अजवा, मबरूम और ईरानी खजूर समेत मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग कई गुना बढ़ जाती है, जबकि शहरी भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इफ्तार खजूर से करने को तरजीह देते हैं। ताहम बाज मुकामात पर कीमतों में इजाफे की शिकायत भी सामने आ रही हैं, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया से नरखों की निगरानी का मुतालबा किया है। हारूनाबाद की मार्केट में हर अकसाम की खजूर तो मौजूद है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से गरीब आदमी जो है वो खरीद नहीं सकता। वो आम गरीब आदमी कितने लै सकता। रोज रमजान शीदा महीना हर जगह ते हर मुल्क दे विच चीज़ां सस्तियां होंदियां। सर, रमजान ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਈਏ हर तरह। माह रमजानुल मुबारक में खजूर न सिर्फ इफ्तार का लाजमी हिस्सा है, बल्कि इसकी बढ़ती फरोगत मुकामी बाजारों में कारोबारी सरगर्मियों को भी तेज कर देती है। शहरियों का कहना है कि अगर कीमतें काबू में रहें तो हर दस्तरख्वां खजूर की मिठास से सजा रह सकता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहां तहसील 18 हजारी में कैनाल के राजपा पर कायम पुल गड्ढे का मंजर पेश करने लगा है, जो आए रोज हादसात का सबब बन रहा है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर से। जी उमर, बताइएगा। जंग की तहसील 18 हजारी के इलाका मौजा रेड, जो कि 30,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल है, इलाके में गुजरने वाली नहर जो कि रंगपुर कनाल से मुंसलिक है, नहर के ऊपर मौजूद पुली जो कि टूट फूट का शिकार है और वहाँ पे गड़ा बन चुका है, जिससे हादसात मामूल बन गए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। आए उनसे जानते हैं कि उनकी हुकाम बाला से क्या मुतालबा है। जी बताइएगा। जी शुक्रिया। ये जो है तकरीबन पिछले 6 माह से टूट फूट का शिकार है और आए रोज़ यहाँ कोई ना कोई हादसा पेश आता है। हमें ये खदशा है कि अल्लाह न करे कि कोई वाक़या जैसे रूनुमा हुआ है कराची में और लाहौर में, इस तरह का कोई वाक़या यहाँ पेश आए। ये जो पुल है ये इस इलाके की बहुत ज़्यादा आबादियों को शूट करती है, लिंक करती है, जैसा कि गट्टा वाला हो गया, भंडा वाला हो गया, बस्ती सदीकाबाद हो गई, बस्ती हतारा वाला हो गया, मोहम्मद वाला हो गया, मेहदी वाला हो गया। तो काफ़ी सारे नफूस पर ये इलाका आबादी पर मुश्तमिल है। हमारी हकाम वाला से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इनका डीसी ज़िले इंतज़ामिया, डीसी जंग अली अकबर भिंडर, असिस्टेंट कमिश्नर सनाउल्लाह हिंजरा और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से यही मुतालबा था कि इस पुली को जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए। नाज़रीन, माह सयाम में नौशहरो फिरोज के रोजेदार शहरी साफ पानी के हसूल के लिए शहर से दूर जाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद शहरियों के लिए साफ पानी का खातिर ख्वाह इंतजाम न किया जा सका। तफसीलात बताएंगे हसन सोमरू अपनी इस रिपोर्ट में। नौशहरा फिरोज जिले भर में पीने का साफ पानी तो पहले ही खराब था, मगर रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी शहरियों को साफ पानी मुहैया करने का इंतजामिया ने इंतज़ाम न किया। शहरी रोज़े के साथ बेदस्तूर शहर से बाहर दूर जाकर पीने का साफ पानी लेने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की तरफ से साफ पानी के फिल्टर प्लांट नस्ब न करके शहरियों को दर अजाब में डाला हुआ है। साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों का बजट होने के बावजूद साफ पानी मिलना इम्तिहान बना हुआ है, जिस पर शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में जो पानी है वो मुकम्मल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है पेट की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। तारुशाह की और ज़िला नौशहरा फिरोज की हॉस्पिटलें जो हैं वो मरीज़ों से भरी पड़ी हुई हैं। वहाँ भी जो सहूलियात है वो भी वहाँ मुयसर नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया है वो इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है कि लोगों की सेहत के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम दे। नौशहरा फिरोज का मुकम्मल पानी जर का ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है और लोग जो है पेट की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हुकूमत जो है बिल्कुल नाअहल हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि सरकारी प्लांट लगवाएं पानी के, ताकि लोग आसानी से पानी पी सकें और बीमारी पेट की बीमारियों से ख़त्म हो जाए उनकी बीमारियाँ। और मुतालबा यही है कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी प्लांट लगवाएं, जो पानी अच्छा मिलेगा तो लोग जो है ना बीमारी के हिसाब से ख़त्म हो जाए बीमारी भी, और जो पेट की बीमारियां वो भी खत्म हो जाएंगी और गरीब लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। नौशहरा फिरोज जिले भर में लाखों की आबादी के लिए साफ पानी पीने की फराहमी न होने की वजह से रमजान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी साफ पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साफ पानी इंतजामिया की गिफलत ने इम्तिहान बना दिया है। उन्होंने काम बाला से मुतालबा किया कि नौशहरा फिरोज जिले भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में साफ पानी के फिल्टर प्लांट लगाकर शहरियों को साफ पानी मुहैया करके सेहतमंद जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशहरा फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हैदराबाद के होसरी थाने की हदूद में एक गांव पर मुसल्लह हमले के खिलाफ बरोही बराती के मर्दों और खवातीन ने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहिरीन के मुताबिक रात के अंधेरे में 100 से जायद मुसल्लह अफराद ने सोमार बरोही गांव पर हमला कर दिया और 8 से 9 घंटे तक फायरिंग करते रहे, जिससे खवातीन, बच्चों और मकीनों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमलावरों ने घरों से सोना, जेवरात, नकद रकम और कीमती सामान लूट लिया है, जबकि गांव पर कब्जे की कोशिश भी की है। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया।
शहीदात कोट में शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने सब्जी मंडी से रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा कि शहर में डकैतियों के वाकयात में इजाफा होने लगा है और नाअहल पुलिस इंतजामिया सो रही है। उन्होंने IG सिंध, DIG लाडकाना और SP कंबर शहदात कोट से मुतालिबा किया कि लोकल पुलिस के तबादले और सामान की फौरी बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा। नूरियाबाद और कोहिस्तान के सियासी हलकों में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां दो बाअसर सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मलिक चंगेज खान रुकन कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर के करीबी रिश्तेदार और तवील अरसे से सियासी हरीफ समझे जाते हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक उनकी शमूलियत से जिला की मुकामी सियासत में अहम तब्दीली मुतवक्की है। चेयरमैन जिला काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने सक्खर IBA यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए जदीद IT लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह किया और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख, प्रो वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल ने कहा कि सक्खर IBA यूनिवर्सिटी ने तालीम, खेल और जिद्दत के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया है। उन्होंने सक्खर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स IT प्रोग्राम के आगाज का ऐलान करते हुए कहा कि इब्तदाई मरहले में जिला काउंसिल की जानिब से 25 लैपटॉप फराहम किए जाएंगे, जबकि बेहतरीन मंसूबों के लिए जिला और सिंध हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। नवाबशाह में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस की जानिब से वोटर आगाही के फरोग के लिए तालीमी इदारे में खसूसी सेशन का इनेकाद हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह में आपका वोट आपकी आवाज के उन्वान से आगाही सेशन मुनक्किद हुआ है, जिसमें नौजवानों को इंतखाबी अमल में शिरकत की अहमियत से आगाह किया गया। तलबा को वोटर रजिस्ट्रेशन, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक और शफाफ इंतखाबात की अहमियत से आगाह किया गया, जबकि चार्टर पेपर सरगर्मी के जरिए तलबा के वोटर आगाही पैगाम भी तहरीर किए गए। आखिर में तालिबात और उसातिज़ा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ओकाड़ा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में इंसदादे कूड़ा करकट आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर सफाई, कूड़ा करकट मुकर्रर मकामात पर फेंकने और शहर को साफ रखने के पैगाम दर्ज थे। इंतजामिया ने बताया कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तहसील भर में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने और अवामी शऊर बेदार करने के लिए आगाही सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। हैदराबाद को हाट में डॉक्टर महविश के बेईमाना कत्ल के खिलाफ डॉक्टर ज्वाइंट एक्शन कमेटी सिंध की जानिब से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल की OPD में यौम स्याह मनाया गया और वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। एहतजाज में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कातिल को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हसास अस्पतालों में रेंजर्स की तैनाती अमल में लाई जाए। रहनुमाओं ने कहा कि हर सेहत मरकज पर मुस्तकिल पुलिस चेक पोस्ट कायम की जाए और हेल्थ केयर सिक्योरिटी एक्ट को तरजीही बुनियादों पर मंजूर किया जाए। सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप प्रोग्राम के तहत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा, साथी और इंतजामिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने कहा कि लैपटॉप स्कीम नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने और तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने का अहम कदम है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। हमें ऐसा लगता है हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अबाउट कि हमारी GPA जो है वो आ रही है नहीं आ रही है। सो आई वुड से टू ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन योर GPA, इट डज मैटर। विप्रो तो मेरे पास था, बट इसके जरिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इसमें इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके ऊपर हम हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, तो फिर वो करेंगे। मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और ये फील्ड टोटली रिलेटेड ही टेक्नोलॉजी से होती है और कंप्यूटर हमारे बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं और ये सब, तो ये लैपटॉप एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा हमारे लिए फर्दर आगे स्टडीज़ के लिए इंशाल्लाह। वी आर वेरी हैप्पी जिस तरह थर पार्कर में निजी वेलफेयर ट्रस्ट ने रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब घरानों और स्कूलों के बच्चों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी रखी। ट्रस्ट ने 100 से ज्यादा पानी के बोर स्कूल के बच्चों में कॉपियां, किताबें और स्कूल बैग तकसीम किए हैं। साथ ही गरीब घरानों में राशन तकसीम और रोजा अफ्तारी का एहतमाम किया गया।
सियालकोट के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में निजी फाउंडेशन की जानिब से खसूसी बच्चों में नकद ईदी और रमजान राशन बैग्स तकसीम किए गए। नायब सदर फाउंडेशन हादिया बिलाल ने कहा कि जिस्मानी मासूर बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और एहसास से महरूमी खत्म करना कम्युनिटी की इज्तमाई जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर मुबीना नकवी के मुताबिक 60 खसूसी बच्चों में फीकस 5,000 रुपए नकद ईदी और हर बच्चे की फैमिली के लिए रमजान राशन बैग तकसीम किए गए। ओस्ता मोहम्मद में रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्केट कमेटी ने सस्ता इतवार बाजार लगाने का फैसला किया है। मार्केट कमेटी ओस्ता मोहम्मद का इजलास चेयरमैन मीर मुर्तजा खान जमाली की जेर सदारत हुआ, जिसमें तय पाया है कि माह मुकद्दस में शहरियों को मेयारी अशिया खुरोनोश मुनासिब निरखों पर फराहम की जाएंगी। आइंदा इतवार बाजार मार्केट कमेटी के अहाते में लगाया जाएगा और सफाई और बेहतर इंतजामात के लिए जगह का मुआयना भी किया गया है। घग्गड़ मंडी में समाजी शख्सियात ने रमजान के बाबरकत महीने में गरीब और नादार खानदानों के लिए राशन बैग्स तैयार कर इस कार्य खैर में तंजीम के अहदेदारान और मकामी शख्सियात ने भरपूर ताउन किया। शहरियों ने इस कदम को सराहते हुए कहा कि इससे रमजान के मुकद्दस महीने में मोहताज खानदानों को रिलीफ मिलेगा और समाजी भाईचारे को भी फरोग मिलेगा। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SSP दादू के ज़ेरे रहनुमाई जिला भर में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। पुलिस ने अहम शाहराहों, दाखिली और खारजी रास्तों, बाजारों, मसाजिद और दीगर हसास मुकामात पर नफरी तैनात की है। अफ्तार और तरावी के औकात में खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए ताकि शहरी बिला खौफ इबादत और रोजमर्रा सरगर्मियां अंजाम दे सकें। कबीरवाला के निजी स्कूल में सालाना तकरीबें, तकसीम इनामात और वालदैन और उसातिज़ा मीटिंग मुनक्किद की गई। तकरीब में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात और शील्ड पेश की गयी। स्कूल के प्रिंसिपल शुएब महबूब ने कहा कि इसका मकसद बच्चों की हौसला अफजाई और सलाहियतों को उजागर करना है। बादशाह वालिदैन और उसातिज़ा मीटिंग में बच्चों की तालीमी कारकर्दगी, अखलाकी तरबियत और बेहतरी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमजानुल मुबारक में रजिस्टर्ड मेहनत कशों में 10,000 रुपए माली इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़कार अली खर ने क्लास फैक्ट्री और सोशल सिक्योरिटी दफातर का दौरा किया। फैक्ट्री वर्कर में मरियम नवाज राशन कार्ड तकसीम किए। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने मेहनत कशों से बराह रास्त गुफ्तगू और सहूलियात पर बातचीत की। कमिश्नर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर अहदेदारों से मुलाकात भी हुई और मुख्तलिफ शोबाजात, इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने वर्कर को कैश निकालने के तरीक़ेकार पर आगाही फराहम की और कहा कि रजिस्टर्ड मेहनत कश रमजानुल मुबारक में 10,000 रुपये कैश भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मदीना टाउन सोशल सिक्योरिटी हस्पताल का दौरा भी किया, जहां हस्पताल के MS ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी का मुआयना भी किया गया और मेहनत कशों को बेहतरीन इलाज की फरहमी यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई। कमिश्नर ने हस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। फैसलाबाद ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्टोरेट्स की कारकर्दगी, कंट्रीब्यूशन और वर्कर वेलफेयर रिकवरी टारगेट्स, मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम और दीगर अमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फारूक नकवी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सियालकोट के नवाही गांव में नकासी आब का मसला शिद्दत इख्तियार कर मुकामी रिहायशियों का कहना है कि गटरों और नालों में खड़ा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त को दुश्वार बना रहा है बल्कि ताफुन और बीमारियों का बायस भी बनने लगा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से फौरी नोटिस लेने और मसला हल करने का मुतालिबा किया है। आरिफाला में यूनियन काउंसिल चवन के बेशतर देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खस्ता हाल सड़कों ने आवाम के लिए पैदल चलना भी मुश्किल बना दिया। मज़ीद जानते हैं हमाद आवान से। जी बिल्कुल, यूनियन काउंसिल चवन के बेशतर देहात जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 135 EB के लिंक रोड पर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लिंक रोड है ना सिर्फ 135 EB को कब्रिस्तान से मिलाता है, बल्कि ये लिंक रोड इस गांव को ज़िला विहाड़ी और तजारती जो मराकज़ है गग्गो मंडी, जहां किसान अपनी ज़रिए अजनास लेकर जाते हैं,
یہ لنک روڈ تجارتی مراکز تک بھی ملانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن یہ جو لنک روڈ ہے عرصہ 25 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ ابتر ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں کے ایک مقیم موجود ہیں، مزید انہیں سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہمارا یہ روڈ جو ہے یہ ہمارے کھیتوں کے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گگو منڈی جناس لے جانے کے لیے بھی، اور ہم سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ قبرستان میں میت لے کے آتے ہیں تو ٹوٹ پھوٹ کے شکار روڈ پہ جب چلتے ہیں تو بہت ہی مشکلات آتی ہیں۔ اسی طرح جو گاڑیاں ٹرالیاں ٹریکٹر وغیرہ ہیں ان کے بھی ٹائر بہت زیادہ پنچر ہوتے ہیں، کیونکہ بجر جو ہے نا وہ بالکل نمایاں ہو چکا ہے۔ اب ہماری حکام بالا سے گزارش ہے کہ اس روڈ پہ جلد توجہ دی جائے اور اس کو نیا تعمیر کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات دور ہو سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے علاقہ مقیم کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ اس طرح شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ ہمارے کندھوں پر جب میت ہوتی ہے تو روڈ پر چلنا ہمارے لیے محال ہوتا ہے، جو روڈ پر پڑے پتھر ہیں وہ ہمارے پاؤں میں لگتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اور اہل گاؤں نے مطالبہ کیا ہے ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا سے کہ اس روڈ کی جو تعمیر نو ہے اس کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے تاکہ سفر کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آسانی پیدا ہو۔ جی جنگ میں اساتذہ کے مطالبات کے حق میں احتجاج جاری ہے۔ اساتذہ نے قوانین کی بحالی، اسکولوں کی نجکاری روکنے اور الاؤنسز کے مطالبات کے لیے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کریں گے محمود عباس۔ جھنگ میں اساتذہ کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں فیصل آباد میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے جھنگ سے اساتذہ کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کی قیادت صدر پنجاب ٹیچر یونین انور جپا نے کی۔ انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ ہم انہیں ٹف ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ نہیں رکے گا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے، جن میں ہماری لیو کیشمنٹ ہے، ہماری پینشن میں اصلاحات جو ہے وہ یہ ان کا ختم نہیں ہوتا، 17 رولز کی جو ہے بحالی نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ سکولوں کی نجکاری بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ سکول بک گئے تو غریب والدین کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے اور جو نا خواندگی کے لحاظ سے پاکستان نیچے چلا جائے گا۔ مرد و خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ سارے کے سارے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے اور ہماری پینشن پہ جو کٹ لگایا جا رہا ہے اس کو بھی بحال کیا جائے، اور جو ایس ایس ایز اور اے ایوز اب تک 2017-18 سے لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے مستقل نہیں کیا گیا، ان کو مستقل کیا جائے، اور نیز ہمارے جو جتنی ہماری لیو ان کیشمنٹ کے مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائیں۔ صدر پنجاب ٹیچر یونین انور جپا کا کہنا تھا کہ اساتذہ برادری اپنے حقوق کے حصول کے لیے پرامن احتجاج جاری رکھے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جھنگ۔ اور وہاں جیکب آباد میں مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی ٹک ٹاکر سارا بلوچ انصاف کی تلاش میں سکھر پہنچ گئیں۔ متاثرہ خاتون نے اپنے شوہر کے ہمراہ سکھر نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے اور اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالحفیظ۔ متاثرہ ٹک ٹاکر سارا بلوچ کا کہنا ہے کہ چند روز قبل بااثر افراد خاتم مولا بخش اور دیگر نے انہیں ویڈیو بنانے کے لیے اپنے گھر بلایا، جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر مبینہ طور زیادتی کی گئی۔ سارا بلوچ کے مطابق ملزمان نے نہ صرف ان کے ساتھ زیادتی کی بلکہ ان کی نازیبا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، ایک چاٹا مارا، انہوں نے کہا اپنے جکھرانی کا نام بدنام کر کے رکھ دیا، جکھرانی کوئی بھی عورت ایسے کوئی عورت نہیں ہے جو ویڈیوز بناتی ہے، تو انہوں نے زیادتی بھی کیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر عبدالجبار نے بتایا کہ ان کی شادی 1 سال قبل ہوئی تھی اور یہ مسئلہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے معاملے پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ کیس تو درج ہو چکا ہے مگر نامزد ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے، آزاد گھوم رہے ہیں۔ عبدالجبار کے مطابق پولیس کی جانب سے انصاف نہ ملنے پر FIA سائبر کرائم ونگ میں بھی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ متاثرہ میاں بیوی نے وزیر اعلیٰ سندھ اور IG سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور انہیں جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین اسامہ کے ساتھ عبدالحفیظ، ٹی وی ٹوڈے، سکھر۔
अब्दुल हफीज रिपोर्ट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जिला खानेवाल में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन जान मोहम्मद और एसडीपीओस ने उनका इस्तकबाल किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद रहमानी। खानेवाल ने तैनात होने वाले डीपीओ मोहम्मद आबिद को यादगार शोधा पुलिस पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोधा पुलिस खानेवाल के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। बादजा डीपीओ ऑफिस में मुख्तलिफ ब्रांच इंचार्ज से उनका तारुफ कराया गया। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने दफ्तर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया और स्टाफ से पुलिस अमूर और कारकर्दगी के हवाले से दरियाफ्त किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिला खानेवाल में अमन व अमान का क़याम, जुराइम पर मौसर कंट्रोल, अवामी खिदमत और थाना कल्चर में मुस्बत तब्दीली उनकी अव्वलीन तरजीहात हैं। कानून की अमलदारी और मेरिट पर इंसाफ की फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस फोर्स को एक जिम्मेदार, बावकार और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ राशिद रहमानी, टीवी टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।